پاکستان ویلفیئر ایسوسی ایشن یوتھ اینڈ کمیونٹی سینٹر سلاؤ میں یوم پاکستان کی مناسبت سے پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں میئر سلاؤ چودھری نذیر احمد، معروف سیاسی اور سماجی شخصیت راجہ زاہد سمیت کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی۔ اس موقع پر جذبہ حب الوطنی سے سرشار اوورسیز پاکستانیوں نے ملک کی سلامتی اور قومی وقار کے تحفظ کے عزم کا اظہار کیا۔ تقریب کا احوال جانتے ہیں وسیم کاظمی کی رپورٹ میں۔ پاکستان ویلفیئر ایسوسی ایشن یوتھ اینڈ کمیونٹی سینٹر سلاؤ میں حب الوطنی سے سرشار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں علاقے بھر سے پاکستانی اوورسیز کمیونٹی نے بچوں سمیت شرکت کی۔ میئر سلاؤ چودھری نذیر احمد، معروف سیاسی اور سماجی شخصیت راجہ زاہد تقریب میں خصوصی طور پر شریک ہوئے۔ اس موقع پر خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے پاکستانی پرچم لہرا کر وطن سے محبت کا اظہار کیا۔ پی ڈبلیو اے کے چیئرمین راجہ محمد شبیر، راجہ زاہد ظفر، سابقہ میئر سلاؤ عشرت شاہ، ناظم بخاری، آزاد جرال، محمد حسین چودھری اور دیگر شخصیات نے مل کر پرچم کشائی کی۔ جیسے ہی سبز ہلالی پرچم فضا میں بلند ہوا، فضا پاکستان زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ خواتین اور بچوں نے سبز رنگ کے لباس زیب تن کر کے ہاتھوں میں پاکستانی پرچم لہرا کر وطن سے محبت کا اظہار کیا۔ شرکا کا کہنا تھا کہ پوری قوم کو مبارکباد، یہ وطن عزیز آباء و اجداد کی لازوال قربانیوں کے ذریعے حاصل کیا گیا۔ آج کے دن پاکستان میں امن و سلامتی کے لیے تجدید عہد کی ضرورت ہے۔ پوری پاکستانی قوم کو جو پاکستان میں ہے اور جو اوورسیز ہیں، سب کو پاکستان ڈے کی مبارکباد دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم پاکستان کو مضبوط سے مضبوط تر بنائیں گے اور اس کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنی جو بھی ہم سے ملک نے ڈیمانڈ کیا اس پہ پورا اتریں گے۔ یوم پاکستان کے دن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ہمارا یہ سیلیبریٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو ہماری یو کے میں آنے والی نسل ہے اس کو پتہ چلے کہ ہمارے جو بزرگوں نے اس ملک کو بنانے کے لیے قربانیاں دی ہیں، اس سے ان کو آگاہی ہو۔ We are lucky and privileged to be here, and especially independently. And دوسرا میسج یہ ہے کہ we must celebrate, congratulate everybody. خواتین کا کہنا تھا کہ آج دیار غیر میں یوم پاکستان کا جشن جوش و خروش کے ساتھ منا کر نہ صرف اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، بلکہ اپنی نئی نسل کو حب الوطنی کے جذبات سے بھی روشناس کرا رہے ہیں۔ برطانیہ میں بسنے والے اوورسیز پاکستانی اپنے بچوں کو ہمیشہ اپنے وطن سے جڑے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ For our children to understand the sacrifices our forefathers made for us to have our Pakistans. Because we've got Pakistan, we've got freedom, and alhamdulillah the turnout has been amazing and it's just been so beautiful, and I'm really grateful to Allah. قائد اعظم نے اپنی جدوجہد سے کس طرح سے پاکستان حاصل کیا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور ہمارے ہاتھ میں یہ بات ہے کہ ہم اپنے ووٹ سے اپنی ووٹ کی ویلیو کو جانیں، کہ نہ کہ جس کی جیب میں پیسہ ہوتا ہے تو وہ کسی کی جیب میں ڈال کر تو لیڈر خرید لیتا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں حصہ لینے والی ایک شخصیت نے جنگ کے حوالے سے اپنی یادیں تازہ کی، جنہیں حاضرین نے دلچسپی کے ساتھ سنا۔ انڈین آرمڈ کور ایٹ دیٹ ٹائم پاکستان بعد میں بنا ہے، ریکانسنس ریجمنٹ، تو خدا کے فضل و کرم سے ایک دن میں 2 مہینے کام کیے۔ یقین فرمائیے، اللہ کو حاضر ناظر کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جرمن کے میں نے 3 قیدی کیے، ایک وارنٹ افسر تھا اور 2 سولجر تھے۔ انہوں نے مجھے اٹالین لیرے اور گولڈن واچز آفر کی، اٹالین بڑا رقم مجھے کہ یہ لے لو۔ میں نے بولا نو، ہم پیسے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم جنگ میں آئے ہیں۔ اپنے حضور پاک نے فرمایا اگر تمہارا حکمران غیر مذہب کا بھی ہے، تمہارا کام ہے اس کے ساتھ لائلٹی کا ثبوت دینا۔ اس کے بعد 1 گھنٹے کے بعد جب میری آرمڈ کار لیڈنگ میں تھی تو ایک دریا کے اوپر لکڑی کا پل بنا ہوا تھا، جرمن نے کیا کیا، پٹرول پھینکا، آگ لگا کے چلا گیا کہ یہ جل جائے گا،
तो ये एडवांस रुक जाएगा। जश्न आज़ादी की इस तकरीब में पाकिस्तान की सलामती के लिए खसूसी दुआएं मांगी गईं। आखिर में योम पाकिस्तान के हवाले से केक भी काटा गया। योम पाकिस्तान के मौका पर सलाव के कम्युनिटी हॉल में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने बच्चों समेत शिरकत करके इस बात का अहद किया कि वो अपनी आने वाली नस्लों में वतन परस्ती का दर्स मुंतकिल करेंगे। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। लंदन के नवाही इलाके हाई वैकम में भी योम करारदाद पाकिस्तान मिली जोश व जज्बे से मनाया गया। हाई वैकम में योम पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब मुनक़िद की गई, जिसमें डायरेक्टर नईम ताहिर, सीनियर नायब सदर OPWC चौधरी आफ्ताब हुसैन, सदर यूथ फोरम OPWC मंसूर कयानी और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ UK गुलाम हुसैन ऐवान अपनी रिपोर्ट में। योम करारदाद पाकिस्तान के मौके पर हाई वैकम की फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। तकरीब का एहतमाम AIHL की जानिब से किया गया, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी की नुमाया सियासी और समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। AIHL के डायरेक्टर नईम ताहिर, सीनियर नायब सदर OPWC चौधरी आफ्ताब हुसैन, सदर यूथ फोरम मंसूर कियानी, अजहर हुसैन मिर्जा, तसद्दुक मिर्जा, तलत हुसैन, चौधरी तारक, काउंसलर इमरान, OPWC के हफीज शेख, सदर OPWC हाजी आबिद हुसैन, चेयरमैन OPWC नईम नक्शबंदी और दीगर शख्सियात ने खसूसी शिरकत की। इस मौके पर तकरीब को पाकिस्तानी परचमों से खूबसूरती के साथ सजाया गया था। फिजा मिली नगमों से गूंजती रही। तकरीब के शुरा का कहना था कि पाकिस्तान की तरह बरतानिया में ओवरसीज योम पाकिस्तान मिली जोश जज्बे के साथ मनाते हैं। इसी करारदाद की वजह से मुसलमानों के लिए अलग वतन का हसूल मुमकिन हुआ। शख्सियात का कहना था कि ओवरसीज हमेशा अफवाज पाकिस्तान और कौम के साथ शाना बशाना खड़े हैं। योम पाकिस्तान की तकरीब का इनेकाद किया गया है और ये जो केक कटिंग सेरेमनी है, ये जो 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान की जो बुनियाद रखी गई, जिसके नतीजे में हमें 1947 में हमें अपनी धरती माँ, हमें हमारा प्यारा आज़ाद मुल्क मिला। और आज हम ओवरसीज पाकिस्तानी न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर पूरी दुनिया भर में जितनी भी कम्युनिटी है, उनके दिल जो है वो पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं और ओवरसीज पाकिस्तानी अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान से बेहद मोहब्बत करते हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए AIHL के डायरेक्टर नईम ताहिर और दीगर शख्सियात ने कुछ यूं इजहार ख्याल किया। आज अपने हाई वैकम में यहाँ तो 23 मार्च का प्रोग्राम रखा है, क्योंकि 23 मार्च को पाकिस्तान का क़याम में मनाने के लिए जो करारदाद मंजूर थी, उसके हवाले से हम ओवरसीज होने की वजह से ये दिन UK में भी इसी तरह मनाते हैं जैसे पाकिस्तान में लोग मनाते हैं। पाकिस्तान के सिलसिले में हम ओवरसीज पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान के साथ इजहार यकजहती के लिए पाकिस्तान की मोहब्बत में एक यहाँ पे एक तकरीब मुनक़िद हुई है, जिसमें कम्युनिटी की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की है। तो हम तमाम अहलियान पाकिस्तान को ओवरसीज़ पाकिस्तान की तरफ से योम पाकिस्तान की बहुत मुबारकबाद पेश कर। आज हमने योम पाकिस्तान पे ये फैसला करना है और तहिया करना है कि पाकिस्तान को हमने मजबूत करना है, पाकिस्तान को तरक्की की राह में गामज़न होने में मदद करनी है। हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है इसमें अपना मेन किरदार अदा करते रहे हैं और करते रहेंगे। पाकिस्तान के लिबास से लेकर, उर्दू ज़ुबान से लेकर, सकाफ़त से लेकर, कल्चर से लेकर, हर एक वो चीज़ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी के जिस्म के अंदर खून को गरमाई रखती है। और हम कहते हैं कि वी ब्लीड ग्रीन ओनली बिकॉज ऑफ द पाकिस्तान डे 1940 23 मार्च। पाकिस्तान की आज परेड भी देखी, पाकिस्तान की बढ़ती हुई शान शौकत भी देखी। पाकिस्तान जिंदाबाद। तकरीब में योम पाकिस्तान के हवाले से सब्ज़ हलाली केक भी काटा गया। तकरीब का इख्तिताम मुल्क व कौम की सलामती की दुआओं के साथ हुआ। गुलाम हुसैन ऐवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ UK। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में 23 मार्च के हवाले से पाकिस्तानी काउंसिलेट में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इस हवाले से 92 न्यूज़ के नुमाइंदे मलिक खालिद बारसी की ये रिपोर्ट देखते हैं। मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं। स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में 23 मार्च के हवाले से पाकिस्तानी कौंसलेट में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। मारूफ शायरा राहत जाहिद साहिबा ने स्टेज सेक्रेटरी के फराइज सर अंजाम दिए। तकरीब में कौंसलर मियां शाहिद फारूक, कौंसलर सरिया सादक, कौंसलर बेली हनीफ राजा समेत मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के पैगामात पढ़कर सुनाए गए। कौंसल जनरल सैयद जाहिद रजा का कहना था कि पाकिस्तानी कौंसलेट के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। उन्होंने
ने हुकूमत पाकिस्तान के अहम कारनामों का भी जिक्र किया। OIC तंजीम के इजलास का जिक्र भी किया गया। Today we are celebrating the National Day of Pakistan. 81 years after the passage of Pakistan Resolution in Lahore. I feel honored and humbled to represent my country in Scotland and the Northern Islands on this day and delivering the messages of President of Islamic Republic of Pakistan and Prime Minister Imran Khan. I congratulate you on the National Day of Pakistan. I look forward to seeing you on such festive occasions again and again. तकरीब में मौजूद शुरका का कहना था कि पाकिस्तान अल्लाह की तरफ से एक नेमत है, हमें अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। 23 मार्च के दिन आज हम अपने तमाम पाकिस्तानी जितने भी जहाँ भी हैं उन सबको पाकिस्तान डे की दिली मुबारकबाद पेश करते हैं। और आज ये तकरीब जो कॉन्सुलेट में मुनाकिद हुई हमेशा की तरह बहुत ही खुशगवार, एक तो मौसम भी इतना अच्छा रहा लेकिन तकरीब भी बहुत अच्छी रही। कैसा मौका जो हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए एक वतन हासिल करने के लिए जो करारदाद पास की थी लाहौर में, उसका रिज़ल्ट हमें पाकिस्तान की शक्ल में मिला। और आज उसी पाकिस्तान की सरज़मीन पे ग्लासगो में पाकिस्तानी कौंसलेट में हमने परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें बड़ी अच्छी तादाद में माशाल्लाह लोगों ने शिरकत की है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, खुदावंद ताला इसको हमेशा कायम रखे, हमारी अगली नस्लों को भी इसी तरह से यही आज़ादी एंजॉय करने का मौका मिले जैसे हमने किया, और उसी तरह से हम फ़ख्र करें वो भी इसी मुल्क पे, और हमें अपने मुल्क के लिए बाइस फ़ख्र करार दे। सब पाकिस्तानियों को जहाँ जहाँ लोग रह रहे हैं, पाकिस्तान वाले सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं पिछले 20 साल से अल्हम्दुलिल्लाह इस कॉन्सर्ट ऑफिस में जो ये पार्टी होती है इसमें थोड़ा बहुत अपनी खाना वाना सर्व कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोग एंजॉय करते हैं, तो इंशाल्लाह आगे भी जब तक ज़िंदगी है करते रहेंगे इंशाल्लाह। तकरीब में परचम कुशाई की गई और केक भी काटा गया। खालिद वारसी, 92 न्यूज़, स्कॉटलैंड। आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन में यौम करारदाद पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तानी कम्युनिटी की जानिब से तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें शुरका ने पाकिस्तान की बुनियाद रखने वाले बुजुर्गों, शहदा और तहरीक पाकिस्तान के कारकुनान को खराज अकीदत पेश किया। तफसीलात के लिए देखते हैं फैसल मिर्ज़ा की रिपोर्ट। इंग्लैंड में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरह आयरलैंड में भी पाकिस्तानी 23 मार्च यौम पाकिस्तान पूरे मिली जोशो जज्बे से मनाते हैं और करारदाद मकासद पेश करने वाले बुजुर्गों और सियासी कायदीन को खूब खराज तहसीन पेश करते हैं, जिनकी वजह से आज पाकिस्तानी आज़ाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं। इस हवाले से तकरीब का इनेकाद आयरलैंड में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किया था, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने सियासी और मजहबी तफरीक से बालातर होकर न सिर्फ शिरकत की बल्कि अपने ख्यालात का इजहार करते हुए पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली बारे अपने ख्यालात का इजहार भी किया। शुरका ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तानी हमवतनों को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद पेश की और पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर शुरका ने कश्मीरी बहन भाइयों को भी याद रखा। तमाम पाकिस्तानियों को यौम पाकिस्तान मुबारक। 1940 को जो हमारे बाबा कौम और अल्लामा इकबाल ने ख्वाब देखा था वो 1947 में पूरा हुआ। मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह एक दिन आएगा हमारे कश्मीरी भाई और फ़लस्तीनी भाई एक आज़ाद मुल्क में रहेंगे। मेरी तरफ से तमाम पाकिस्तानियों को पाकिस्तान डे की बहुत बहुत मुबारक हो। मेरी तरफ से पूरी कौम को पाकिस्तान डे मुबारक हो। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह ताला हमारे कश्मीरी भाइयों को भी आज़ादी नसीब फरमाए। तकरीब के ऑर्गेनाइजर्स ने मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए इस तरह से मुल्क के साथ अपनी वाबस्तगी के लिए मिलजुल कर काम करने और पाकिस्तान की सलामती के लिए ओवरसीज में बैठे पाकिस्तानियों से यकजान होने की अपील की। आयरलैंड में यौम पाकिस्तान के हवाले से हम तमाम दोस्त यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और मैं दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम दोस्तों को और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में एक अच्छा दौर आएगा। मियां नवाज शरीफ की क़यादत में हम एक अच्छी राह और मंजिल की तरफ जा रहे हैं। यौम पाकिस्तान जो कि दर हकीकत यौम जमहूरिया है, बड़े जोश खरोश के साथ मनाया और हम इस बात के लिए दुआ गो हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत अपनी रूह के साथ इम्प्लीमेंट हो और लोग जमहूरी रवैये फ़रोग पाएँ और पाकिस्तान तरक्की करता रहे। आज हम यहाँ पे आयरलैंड में डबलिन में पाकिस्तानी कम्यूनिटी की बड़ी तादाद के साथ पाकिस्तान डे मना रहे हैं। हमने पाकिस्तान के लिए दुआएं की, पाकिस्तान के हालात के लिए दुआएं मांगी और हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे पाकिस्तान को कायम और दायम रखे। इस मौके पर शुरका ने यौम पाकिस्तान का केक काट कर तकरीब को यादगार बना दिया। जैसे ही केक काटा गया फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पाकिस्तान जिंदाबाद। लंदन में मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के रहनुमा संतोष कुमार बख्ती के नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू बोले, हुकूमती इल्ज़ामात झूठे साबित हुए, नवाज शरीफ एक बार फिर सादिक और अमीन साबित हुए हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नून लीगी रहनुमा संतोष कुमार बख्ती का कहना था,
انہوں نے ملاقات میں نواز شریف کو اقلیتی برادری اور پورے پاکستان کی طرف سے سرخرو ہونے پر مبارکباد پیش کی۔ عمران خان کو استعفیٰ دے کر غیر یقینی صورتحال ختم کرنی چاہیے۔ موجودہ غیر یقینی صورتحال کا واحد حل نئے الیکشن کا انعقاد ہے۔ نواز شریف کے دور میں بلوچستان ترقی کی راہ پر گامزن تھا، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا، تمام اقلیتیں محفوظ تھیں، انہیں ہر سطح پر نمائندگی بھی دی گئی۔ سنتوش کمار کا کہنا تھا نواز شریف تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلے، جس سے بلوچستان میں جمہوریت مضبوط ہوئی۔ معاشی طریقے سے تو آپ پوری ملک کے حالات ہیں وہی ہمارے حالات ہیں، مہنگائی عروج پہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ ابھی ایک ہی میں نے اندر میاں صاحب سے بھی یہی کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے گا کہ میاں صاحب بہت جلد پاکستان میں ہمارے بیچ میں ہوں گے اور ان کی قیادت میں پاکستان دوبارہ حکومت آئے گی، سب کچھ ہوگا، یہ ملکی حالات صحیح ہوں گے، اسحاق ڈار دوبارہ اس کو اکنامی کو سنبھالیں گے، چودھری صاحب دوبارہ بجلی کی جیسے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی انہوں نے ختم کی تھی، یہ دوبارہ آ کے ہر چیز کو سنبھالیں گے، یہی خواہش ہے۔ آئرلینڈ میں 15 مارچ کو نان ای یو درخواست گزاروں کے حوالے سے ہائی کورٹ کے بڑے فیصلے کو لے کر بہت سے افراد مشکل کا شکار ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے تارکین وطن کو کیا مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور کیا سہولیات ملیں گی، ماہر قانون دان بیرسٹر فیصل خان نے 92 نیوز سے خصوصی گفتگو میں تفصیلی اظہار خیال کیا ہے۔ نمائندہ 92 نیوز فیصل مرزا سے بات چیت کے دوران انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ جی اس وقت موجود ہیں بیرسٹر فیصل خان کے ساتھ۔ ہائی کورٹ میں جو 15 مارچ کو ایک بڑا ہی ایک بڑا فیصلہ آیا ہے جس میں نان ای یو نیشنلز جو ہیں وہ بڑے ڈسٹرب ہوئے ہیں، اس فیصلے کے بارے میں ان سے ان کی رائے لیں گے فیصل خان کی کہ یہ اس ڈیسیژن کو کیسے دیکھتے ہیں۔ فیصل ویلکم ٹو 92 نیوز، بتائیے گا 15 مارچ کا جو ہائی کورٹ کا ڈیسیژن آیا ہے نان ای یو نیشنلز کے بارے میں، وہ اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو انگلش میں ایک سینگ ہے ان لو کہ ہارڈ کیسز میک بیڈ لو اینڈ بیڈ فیکچوئل کیسز میک ایون ورس لو، ہارش لو، اور یہ جو کیسز تھے یہ ویری ایکسٹریملی بیڈ کیسز تھے آن فیکٹس، سو اوبیسلی ان کا ڈیسیجن نیگیٹو ہی آنا تھا کہ دس واز کامن سینس۔ ہوویور یہ جو کیس ہے آن دا فیس آف اٹ بلا شک یہ ڈسپونڈنٹ اپیئر ہوتا ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ پازیٹیوز ہیں اور اس نے کچھ حد تک پوزیشن کافی کلیئر کر لی، لیکن یہ بھی اینڈ نہیں ہے اس پوزیشن کا، کیونکہ یہ تو ابھی ہائی کورٹ کا ڈیسیجن ہے اینڈ دس کوڈ رن لانگر دس ایشو۔ لیکن یہ اس میں جو پازیٹیوز ہیں وہ یہ ہے کہ جی کہ جج نے کہا کہ اسٹیٹ کی ناٹ بلینکٹ کہ یوز میرج آف کنوینئنس اینڈ سے دس از اٹ، یور کیس ول ناٹ سکسیڈ۔ حالانکہ جج نے کہا جی کہ ایوری کیس شوڈ بی کنسیڈرڈ مورلی آن بیلنس۔ تو قانون میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جتنی بڑی آپ غلطی کرتے ہو آپ کو اتنی بڑی سزا ملنی چاہیے، یہ نہیں کہ جو ایک چھوٹی سی بھی غلطی کرے بندہ اس کو بھی اتنی سزا ملنی چاہیے جو بندہ کو بہت بڑی غلطی کرتا ہے۔ تو جج نے کہا جی کہ ہر کیس شوڈ بی ایگزامنڈ آن اٹس فیکٹس مورلی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جی کہ اسٹیٹ شوڈ لک ایٹ جی کہ اس بندے کا اگر اس نے یہ کوئی اپلیکیشن فائل کی کچھ کیا تو اس کے اپنے فیکٹس کیا تھے، اس کے اپنے حالات کیسے تھے اور اس کے حالات کے مطابق اس کو یہ ایمنسٹی ملنی چاہیے یا نہیں ملنی۔ فراڈ کی ایلیگیشن اس کے لیے بہت ہائی ایویڈنس چاہیے ہوتی ہے اس کی ایلیگیشن لگانے کے لیے۔ تو جن کے خلاف مائنر ایشوز ہیں ان کی اپلیکیشن شوڈ سکسیڈ اور ان کو اپنی اپلیکیشن کمپریہنسولی بنانی چاہیے تاکہ وہ بیفور دے سینڈ اٹ ٹو اسٹیٹ انہوں نے اپنا سارا بیک گراؤنڈ کلیئر کیا ہو، دے شوڈ کم وتھ کلین ہینڈس کہ جی کہ لوگ ہم سے یہ غلطی اگر ہو بھی گئی بٹ اٹس اے ویری مائنر مسٹیک، اور ان کو اپنے سچویشن ڈسکرائب کرنی چاہیے جی کہ یہ ہمارے فیکٹس تھے، یہ ہماری سچویشن تھی، ہم سے یہ چھوٹی سی غلطی ہوگی، ہم اسٹیٹ میں ہمیں اتنا ٹائم ہو گیا ٹیکس پے کرتے ہوئے، دس از آر گڈ ریکارڈ۔ تو اگر تو یہ ہوا لیکن اگر فیکچولی وہ صرف ایلیگیشن ہے اسٹیٹ کی طرف سے تو دیٹ شوڈ بی ویری ایزی ٹو اوور کم۔ اگر آپ اپنی ایویڈنس واپس اس میں فائل کرتے ہو اس میں مسئلہ نہیں ہونا چاہیے آپ۔ جی فیصل کا کہنا ہے کہ 15 مارچ کا جو ہائی کورٹ کا ڈیسیژن ہے گو کہ بڑا اس میں جو نان ای یو جو کمیونٹی ہے اس سے ایک دچکا لگا ہے، لیکن جو مائنر قسم کے کیسز ہیں اس میں آپ کو اگر آپ اپنے آپ کو کلین کر کے کیس آگے لے کے جاتے ہیں تو دیر اسٹل چانسز دیٹ یو ول گیٹ سم تھنگ۔ جی پاکستان میں جاری سیاسی محاذ آرائی میں اپوزیشن فتح یاب ہوگی یا حکومت؟ تحریک عدم اعتماد کا اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا؟ اوورسیز پاکستانیوں نے اپنے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے جو بھی ہو پاکستان کی بھلائی ہونی چاہیے، عمران خان کی حکومت کو 5 سال مکمل کرنے چاہیے۔ 92 نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے اوورسیز پاکستانیوں کا مزید کیا کہنا تھا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہم لوگ عمران خان کی سپورٹ میں تھے، اس بندے کا دل اچھا، مطلب اس نے کہا کام کرنا، پر مسئلہ یہ ہے اس بندے کو کام کرنا آتا ہی نہیں ہے۔
तो करेगा कैसे? इमरान खान, आई डोंट थिंक सो कि इमरान खान चाहेगा, इसको रहना चाहिए, एटलीस्ट इज नॉट करप्ट। बाकी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते ना कि कोई करप्ट है नहीं है। ये नवाज शरीफ है, वो सारा पैसा खा गया, जो कुछ था सारा लेके अभी इधर यूके बैठा है बड़े आराम से, एक अच्छे रेस्टोरेंट में रह, होटल में रह रहा है। और ये कि इमरान खान करप्ट नहीं है, उसका हमें एक ट्रस्ट है। काम कर रहा है, नहीं करना, एटलीस्ट काम कर रहा है, कुछ काम कर रहा है, पर ये है कि इतना उसको एक्सपीरियंस नहीं है, उसको एक चांस और देना चाहिए। अब जो 30 साल में कुछ भी नुकसान किया, वो 5 साल में अब कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ठीक करेगा? इतना प्यारा सिस्टम चला हुआ है, इतनी इज्जत मिल रही है सिर्फ इमरान भाई की वजह से। अल्लाह का शुक्र करो, अल्लाह का शुक्र करो, अल्लाह का शुक्र करो। हम इधर है ना, हमें पता है कितनी इज्जत है। इंशाल्लाह टाइम लगेगा थोड़ा सा, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। और बाकी जो भी वो कर रहा है बिल्कुल ठीक है। पहले क्या किया, क्या हुआ पहले, बेहतरीन नजर आ रही है ना। टाइम लगता है, टाइम लगता है। इतना उड़ा दिया, खत्म, खोखला कुबला करके पकड़ा दिया बेचारे को, है तो अब वो 2-4 साल में कैसे ठीक कर दे? देखिए, बज़ाहिर तो इसलिए ये टाइम नहीं था। आलमी इस्लाम पर दुनिया में जो असरात हैं वो तरीके एतमाद, पाकिस्तान अगर मजबूत है तो ये ख़िता मजबूत है। अफ़गानिस्तान का हाल देख लें, उधर ईरान है, इधर इंडिया है। तो हमें नहीं चाहिए कि इस वक्त ये सही मौका था। अब ये अगर हो रहा है तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की बदनसीबी है कि हमारे यहाँ किसी किस्म का कोई कानून नहीं है हाउस ट्रेडिंग का। हाउस ट्रेडिंग कह लें या फिर एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में आ जाना। पहले यही लोग छोड़ के अपनी पार्टियाँ इमरान खान के साथ आए थे। अब जो देखा है कि जनाब ये जो फसली बटेरे हैं, इनका मुस्तकिल तौर पे आर्मी को, अदलिया को, ये और इस्टेब्लिशमेंट को ये सोचना, मिल के सोचना पड़ेगा कि ये चीज़ें किस तरह ख़त्म हो सकती हैं। पाकिस्तानी सियासत में अदम एतमाद की तहरीक ने बौछार पैदा कर दिया। सियासी गर्मा गर्मी उरूज पर पहुँच चुकी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी इस बदलती सूरत हाल से लम्हा ब लम्हा आगाह हैं और पाकिस्तान के हालात बारे हमेशा फ़िक्रमंद रहते हैं। PTI हुकूमत के ख़िलाफ़ मुमकिन तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जर्मनी में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानी क्या सोचते हैं, आइए देखते हैं। जमहूरी निज़ाम का ये तकादा है कि जब हुक्मरान अपना एतमाद खो दें, जबकि मौजूदा सूरत हाल में ना सिर्फ इत्तेहादी खुल कर साथ नहीं दे रहे, बल्कि अपने मेम्बरान ने भी अदम एतमाद का इज़हार कर दिया है। आवाम तो पहले ही महंगाई की वजह से इस हुकूमत से नाला है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो मिशन शुरू किया है उसने आखिरी दम तक जमहूरी निज़ाम के तहत ही इनको हटाने की कोशिश की है। इनको थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि इस मौके पे जबकि अब मुल्क एक कामयाबी की तरफ चल पड़ा है और इस वक्त इन्होंने बाहर की फंडिंग लेके मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को उतारने का प्रोग्राम बनाया है, जबकि इनको ये ख़तरा है, इनको ये डर है कि इस आखिरी साल में खान साहब ने बाहरी रिलीफ कुछ दे दिया है, कुछ वो देने का ऐलान करेंगे। तो इसलिए इनको पता चल गया था कि हमारा इसके बाद कोई चांस नहीं। हम ओवरसीज़ जर्मनी में जो रहते हैं, हम बताना चाहते हैं कि जो दुनिया का बेहतरीन लीडर है इमरान खान, हम उसके साथ हैं और जिसको पूरी दुनिया एक लीडर मानती है। और पाकिस्तान में इन्होंने ये क्या किया है कि जो अपोजिशन है, सब चोर डाकू लटेरे इकट्ठे हो गए हैं और खान साहब के साथ अदम एतमाद पेश कर रहे हैं। हम इसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। अदम एतमाद जो है वो हमारा आईनी हक है और आइन इस चीज़ की इजाज़त देता है। लिहाजा कौम के नुमाइंदों को भी यह हक हासिल है कि वो अपना वोट कास्ट करें, जिसको वो हक पे समझते हैं उसको वो अपना वोट दें। उसके बाद जो आवाम का फैसला आएगा उसको हर इंसान, हर पार्टी को कबूल करना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जो बंदा इलेक्ट होके आया, मुमकिन है कि PTI में भी कोई दूसरा बंदा आगे आ जाए। अगर इनके खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हो जाता है और PTI नहीं चाहती कि दूसरी पार्टियां आएँ, तो लिहाजा दोबारा अपने किसी बंदे को इलेक्ट कर सकती हैं। हम लोग इस तहरीक अदम एतमाद की वजह से काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि इसकी वजह से मुल्क में जो दोबारा इंस्टेबिलिटी का टाइम आ गया है, तो ओवरसीज़ पाकिस्तान के लिए काफ़ी परेशानी का बायस है। तो हमें चाहिए कि सब लोग इत्तेहाद से मिलकर काम करें और मेरे ख्याल में ये जो तहरीक अदम एतमाद पेश हुई है, ये बेवक्त की रागनी है। 1 साल रह गया था, इसका गवर्नमेंट का ऐसे मुकम्मल होना चाहिए था और उसके बाद अवाम की तरफ जाना चाहिए था। तो अब मेरे ख्याल में तो 2 ही इसके हल हैं कि अगर तो तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है तो गवर्नमेंट वैसे ही चली जाएगी, अगर नहीं होती तो इमरान खान साहब जो हैं वो या तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें
اور یا پھر نئے الیکشن کال کر کے عوام کے پاس جائیں اور جو عوام بہتر فیصلہ کرے وہ ہو جائے۔ سعودی عرب میں پاکستانی سفارت خانے کے زیر اہتمام یوم پاکستان کی تقریب، اسلامی عسکری اتحاد کے کمانڈر جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف، نائب گورنر ریاض پرنس محمد بن عبد الرحمن بن عبدالعزیز کے علاوہ دنیا بھر کے سفارتکاروں نے شرکت کی۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں پاکستانی سفارت خانے کے زیر اہتمام یوم پاکستان کی تقریب میں دنیا بھر کے سفارتکاروں کو مدعو کیا گیا تھا، جس میں چین، ملیشیا، ترکی، انگلینڈ، فرانس، مصر، بحرین، جاپان، انڈونیشیا اور دیگر اہم ممالک کے سفارتکار شریک تھے، جبکہ ڈپٹی گورنر ریاض پرنس محمد بن عبد الرحمن بن عبدالعزیز کے علاوہ اسلامی عسکری اتحاد کے کمانڈر جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف بھی خصوصی طور پر شریک ہوئے۔ اس موقع پر سفیر پاکستان امیر خرم راٹھور نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یوم پاکستان ہماری قومی تاریخ کا اہم ترین دن ہے۔ آج کا پاکستان مستحکم اور مضبوط بنیادوں پر قائم ہے۔ تقریب کے آخر میں ڈپٹی گورنر ریاض پرنس محمد بن عبد الرحمن، جنرل ریٹائرڈ راحیل شریف اور سفیر پاکستان امیر خرم راٹھور نے یوم پاکستان کا کیک کاٹا۔ یوم پاکستان کی مناسبت سے پاکستانی سفارت خانہ روم میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ پرچم کشائی کی تقریب کے بعد صدر پاکستان اور وزیر اعظم پاکستان کے خصوصی پیغامات پڑھے گئے۔ پاکستانی سفیر جوہر سلیم کا کشمیریوں کی جدوجہد آزادی اور پاکستان کے قیام کے لیے لازوال قربانیاں دینے والوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تفصیلات دیکھتے ہیں تنویر ارشاد کی رپورٹ میں۔ اٹلی کے شہر روم میں پاکستانی قونصلیٹ کے سبزہ زار میں یوم پاکستان کی خوبصورت تقریب ہوئی، جس میں اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کی نمایاں سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ قومی ترانے کی دھن میں پرچم کشائی کی تقریب ہوئی۔ مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے نے قومی پرچم کو سلامی پیش کی۔ سفیر پاکستان جوہر سلیم نے پرچم کشائی کا اعزاز حاصل کیا۔ اس موقع پر صدر اور وزیر اعظم پاکستان کے پیغامات پڑھ کر سنائے گئے۔ سفیر پاکستان جوہر سلیم نے شرکا کو تقریب میں خوش آمدید کہتے ہوئے یوم پاکستان کی مبارکباد پیش کی اور پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے پاکستانی کمیونٹی کو فراہم کی جانے والی سروسز کے حوالے سے اظہار خیال کیا۔ reflected how they were being treated there. And that was many, many years ago, when India was still a secular country in many ways, or at least claimed to be so. سفیر پاکستان جوہر سلیم نے قیام پاکستان کی وجوہات اور ہمارے آباء و اجداد کی لازوال قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی کشمیریوں کے لیے اخراج کی سیاسی سفارتی حمایت ہمیشہ جاری رہے گی۔ سفیر پاکستان نے اپنے پیغام میں یہ بھی کہا کہ تمام تر داخلی اور خارجی مسائل کے باوجود پاکستان نے نہ صرف کامیابی سے اپنی سلامتی کا تحفظ کیا بلکہ ترقی کا سفر بھی جاری رکھا ہے۔ وطن عزیز کی ترقی میں سمندر پار پاکستانیوں کا کردار انتہائی اہم اور نمایاں ہے۔ تنویر ارشاد، 92 نیوز، اٹلی۔ سفارت خانہ پاکستان دی ہیگ میں یوم پاکستان روایتی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ پاکستان ہاؤس میں پرچم کشائی کی تقریب ہوئی، جس میں نیدرلینڈ کے مختلف علاقوں سے خواتین اور بچوں سمیت پاکستانی کمیونٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ تفصیلات دیکھیے ڈاکٹر محمد کامران کی رپورٹ میں۔ جگ جگ جیے میرا پیارا وطن، لب دعا ہے دل میں لگن، جگ جگ جیے میرا پیارا وطن۔ سفارت خانے پاکستان دی ہیگ میں یوم پاکستان روایتی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ پاکستان ہاؤس میں پرچم کشائی کی تقریب ہوئی، جس میں نیدرلینڈ کے مختلف علاقوں سے خواتین اور بچوں سمیت پاکستانی کمیونٹی نے بھرپور شرکت کی۔ قومی ترانے کی دھن پر سفیر پاکستان سلجوق مستنصر تارڑ نے قومی پرچم لہرایا۔ اس موقع پر صدر اور وزیر اعظم پاکستان کے پیغامات حاضرین کو پڑھ کر سنائے گئے، جن میں قیام پاکستان کے مقاصد اور ایک حقیقی جمہوری فلاحی ریاست کی ترقی کے حکومتی عزم کو اجاگر کیا گیا۔ سفیر پاکستان نے اپنے خطاب میں پوری قوم کے لیے اس دن کی اہمیت کا اعادہ کیا، تحریک پاکستان کے رہنماؤں کو خراج تحسین پیش کیا اور وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے سمندر پار پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیے گئے اقدامات کے حوالے سے کمیونٹی کو آگاہ کیا۔ میں آپ کو یوم پاکستان پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ سب کو پاکستان ہاؤس میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ سمندر پار پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کے لیے وزیر اعظم اور وزیر
वज़ीर ख़ारजा साहब की खास हदायत हैं और आपका सफारत खाना आपके लिए हाजिर है। राब्ते के मुख्तलिफ ज़राए मौजूद हैं। हम तमाम इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पे डाल देते हैं। एक ज़राए खुली कचहरी का है जो हर माह मुनक्किद हो। सफीर पाकिस्तान सल्जूक मुस्तनसिर तार ने शुरा को पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान ताल्लुकात और दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत के बारे में आगाह किया। उन्होंने गैर कानूनी भारतीय कब्जे से हक खुद इरादियत की मुनसिफाना जद्दोजहद में कश्मीरी अवाम को खराज अकीदत भी पेश किया। सफीर पाकिस्तान ने नीदरलैंड में पाकिस्तानी कम्युनिटी पर जोर दिया कि वो पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान ताल्लुकात के फरोग में अपना तामीरी किरदार अदा करते रहें। तकरीब के शुरा ने इस अज़म का इजहार किया कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी अपना मुस्बत किरदार अदा करते रहेंगे। डॉक्टर मोहम्मद कामरान, 92 न्यूज़, द हेग, नीदरलैंड। दुनिया के दीगर ममालिक की तरह स्विट्ज़रलैंड में भी यौम पाकिस्तान की तकरीब पुरवकार अंदाज में मनाई गई। दारुल हुकूमत बर्न में होने वाली तकरीब में पाकिस्तानी कम्युनिटी ने फैमिलीज़ के साथ शिरकत की और मादर वतन से वालेहाना इजहार मोहब्बत किया। तफसीलात देखिए अकरम बाजवा की रिपोर्ट में। स्विट्जरलैंड के दारुल हुकूमत बर्न में पाकिस्तानी सफारत खाने ने यौम पाकिस्तान की तकरीब सजाई, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी फैमिली के साथ शरीक हुई। तकरीब का एहतमाम पाकिस्तानी सफारत खाने के ग्राउंड में किया गया। परचम कुशाई की तकरीब हुई। इस मौका पर फिजा पाकिस्तानी तराने से गूंजती रही। सफीर पाकिस्तान आमन शौकत ने खिताब करते हुए कहा कि 23 मार्च का दिन पाकिस्तानी अवाम के लिए एक तारीखी दिन है। इस दिन हर मुसलमान ने अपने दिल में तहिया कर लिया था कि हमने अपना अलग मुल्क बनाना है और फिर उसकी ताबीर 14 अगस्त 1947 को मिली। सफारत खाना पाकिस्तान में 23 मार्च यौम पाकिस्तान के हवाले से एक सादा मगर पुरवकार परचम कुशाई की तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी जो स्विट्ज़रलैंड में बसने वाले हैं काफ़ी तादाद में शिरकत की। उन्होंने हमारा आज के इस दिन के हवाले से पैगाम यही था कि जो हमारे आबा अजदाद ने 23 मार्च सन 1940 को पाकिस्तान का ख्वाब देखा था, आए हम सब मिलजुल कर उसकी तरक्की और खुशहाली के लिए काम करें। सफीर पाकिस्तान का कहना था वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामोफोबिया का दिन मनाने और OIC इजलास और उसमें कश्मीर की आवाज़ बुलंद करके हर पाकिस्तान का सर बुलंद कर दिया। हमारे जो पाकिस्तानी हैं यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में बसने वाले, उनमें अगर कोई थोड़ी बहुत अगर दूरियां हैं या उनको महसूस होता है कि हैं, वो ख़त्म हो जाए। और उसमें जी बिल्कुल हमारा सफारत खाना इस वक्त यहाँ हर वक्त मौजूद है। आप किसी वक्त भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। तकरीब के दीगर शुरका ने इस मौके पर हम वतनों को न सिर्फ यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद पेश की बल्कि मुल्क को कौम की खिदमत का आज़म भी किया। 23 मार्च 1940 को हमारे बड़ों ने हमारे दिलों में रूह फूंक दी थी और हम लोग वो पहली कौम है इस दुनिया में जिनको 7 साल पहले ये पता हो गया था कि हमने एक मुल्क बनाना है, और उसी पे फिर तमाम मुसलमानों ने कोशिश की और उस ख्वाब की ताबीर जो है वो 14 अगस्त 1947 को ज़ाहिर हुई। बहुत खुशी है पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी में इश्तिहार गैर में भी पाकिस्तान की तरह बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। सब लोग इधर दियारे गैर में रह के जो है हम थोड़ा सा मैसेज यही देना चाहते हैं कि जहाँ जहाँ भी हम लोग हैं, हम खुद भी अपने उस दिन को याद रखें और उन कुर्बानियों को याद रखें जो हमारे बुजुर्गों ने दी पाकिस्तान बनाने के लिए, और हम अपने बच्चों को भी यही दिखाना चाहते हैं। इसी वजह से इस तरह के जो जब भी कोई इस तरह का इवेंट आता है तो हम लोग मनाते हैं। तकरीब के बाद सफीर पाकिस्तान और उनकी अहलिया मेहमानों में घुल मिल गए। इस मौके पर मेहमानों की खातिर तवाज़ो पाकिस्तानी लजीज खानों से की गई। रूस में सफारत खाना पाकिस्तान मॉस्को के ज़ेर तमाम यौम पाकिस्तान की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी, सफारती अमले और मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। शाहिद घुमन की रिपोर्ट। रूस में सिफारत खाना पाकिस्तान मॉस्को के ज़ेर तमाम यौम पाकिस्तान की तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी, सिफारती अमले और मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ। पाकिस्तान के सफ़ीर जनाब शफकत अली खान ने कौमी तराने की गूंज में पाकिस्तान का परचम लहराया। तकरीब से खिताब करते हुए सफीर पाकिस्तान शफकत अली खान का कहना था कि तहरीक पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की शक्ल में अपने इख्तिताम को पहुंची। बर्रे सगीर के मुसलमानों ने आज़ादी हासिल करने के लिए बहुत कुर्बानियां दी। आज हम एक आज़ाद कौम के तौर पर अपनी जिंदगियां गुजार रहे हैं। 23 मार्च को करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई थी। उनका मजीद कहना था कि बर्रे सगीर के मुसलमानों की अनथक कोशिशों से पाकिस्तान वजूद में आया। हमें आज़ादी की कदर को समझने की जरूरत है और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए कोशिशें करनी चाहिए, जहाँ हमारी आने वाली नस्लें खुशगवार जिंदगी गुजार सके।
सकें। तकरीब में सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के 23 मार्च के हवाले से खुसूसी पैगामात भी पढ़कर सुनाए गए। शाहिद घुम्मन, 92 न्यूज़, रूस। ऑस्ट्रेलिया में बज़्म अदब कैनबरा के ज़ेर एहतमाम एक शाम ज़ीशान हैदर के नाम पर वक़ार अदबी तकरीब गंगालन लाइब्रेरी में मुनक़िद हुई, जिसके मेहमान ख़ुसूसी सिडनी से आने वाले मारूफ शायर अरशद सईद थे। रखी है हमने दिल की ज़मीं गोद गाड़ के। बज़्म अदब कैनबरा के ज़ेर एहतमाम एक शाम ज़ीशान हैदर के नाम पुरवकार अदबी तकरीब गंगलन लाइब्रेरी में मुनक़्क़द हुई, जिसके मेहमान ख़ुसूसी सिडनी से आने वाले मारूफ शायर अरशद सईद थे। तकरीब का आगाज़ तलावत कुरान पाक से हुआ। तलावत के बाद हदिया नात की सादत औसाफ हैदर ने हासिल की। तकरीब में नज़ामत के फ़राइज़ इकबाल खान ने सर अंजाम दिए। तकरीब में नासिर खान, सरोश भाटिया, बशीर अहमद, मोहम्मद अली और बिलाल मुख्तार ने अपना कलाम पेश किया। मगर दिन है कि रुक रुक कर नए खाना को जाता है, न यूं लेते बलाएं साकिया न हुए मैं होती। न यूं लेते बलाएं साकिया न हुए मैं होती। बुला देते हैं सब लेकिन जहां पैमाना आता है। तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा न लगे। जबकि इकबाल खान ने बज़्म अदब की तश्कील के बारे में तफसीली गुफ्तगू की और मिर्ज़ा गालिब के बारे में अपना मजमून पेश किया। और अगर सच्चे आशिकाने लाहौर से पूछो तो वो इंतहाई फख्र से ये दावा करते हैं कि जिन्हें लाहौर नहीं देखा और जमिया नहीं, जिसने लाहौर नहीं देखा वो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। गालिब के बारे में मुझसे पूछो तो मुख्तसर जवाब यही मिलेगा कि गालिब गालिब है। बेहतरीन शायरी का एजाज पाने वाले मोहम्मद अली ने ज़ीशान हैदर के अदबी मुकाम की मौसर अंदाज में तस्वीर कशी की। दुआ यही थी कि एक से एक बढ़कर जहद सामने आती रहे और एक से एक बढ़कर आगे लोग आते रहे। और उस सफर में एक दिन एक नाम आया, उसका नाम ज़ीशान हैदर था। दूसरी ज़ीशान की जो सबसे अच्छी जो क्वालिटी मुझे नजर आई है, जो कि नौजवान शोरा में नहीं होती, कि तहतुल लफ्ज़ में इतना खूबसूरत पढ़ते हैं कि ये अगर इनके शेर जो आम से शेर की पढ़ें तो वो जो है वो अट्रैक्ट करता है सामने को कि शेर कितने अच्छी तरीके से पढ़ा गया। ज़ीशान हैदर ने अपने मुनफरद कलाम के जरिए हाज़रीन की ज़हनी आबियारी की और अपने मखसूस अंदाज में मुख्तलिफ कतात सुनाए। दिल को सूझी नहीं रिहाई की, मैंने सयाद पर खुदाई की, वो वफा कर रहा था मजबूरन, वो वफा कर रहा था मजबूरन, मैंने जब उससे बेवफाई की।